علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب کی بےحد شکر گزار ہوں۔ آپ سب کے سپورٹ اور پیار کی وجہ سے مجھے اور اچھا کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ آج کا اسپیشل تھینکس ام ہانی کا جو کہ انڈیا سے ہیں، اور سعدیہ کا جو کہ اسلام آباد پاکستان سے ہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک زوردار شاٹ لگا اور بال بلے سے ٹکراتے ہوئے زہرا کے گھر میں جا گرے۔ بال کے اندر گرتے ہی چھناکے سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد سارے ماحول پر خاموشی چھا گئی۔ ارے یار، مارا گیا، پھر سے بال اس کے گھر میں چلی گئی ہے اور کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے۔ یار حسن، تو دیکھ کر کھیلا کر یار، پچھلی بار بھی بال اس کے گھر گئی تھی تو اس نے دی ہی نہیں تھی، ابھی بھی واپس نہیں کرے گی، پتہ تو ہے چڑیل ہے پوری۔ ثاقب جھنجھلاتے ہوئے حسن سے کہہ رہا تھا۔ بدقسمتی سے شاٹ حسن نے مارا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ بال زہرا کے گھر میں جا گری ہے، وہ بلا پھینک کر کھڑا ہو گیا۔ میرے تو دونوں ہاتھ کھڑے ہیں بھائی، میں تو کھیل ہی نہیں رہا۔ اگر کوئی پوچھے کہ شاٹ کس نے مارا تھا تو خبردار کسی نے میرا نام لیا۔ حسن تو دم دبا کر بھاگ گیا۔ پیچھے ثاقب اپنی ٹیم کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ بیچاروں کے پاس ایک ہی تو بال تھی۔ ثاقب یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ تھا۔ گلی محلے کے یہ دوست بھی کالج اور یونیورسٹیوں میں ہی زیر تعلیم تھے، لیکن بچپن کا شوق ابھی تک ان کے دل سے نہ گیا تھا۔ T20 ورلڈ کپ کے شروع ہوتے ہی گلی محلے میں ہر جگہ ایسی ہی ٹیمیں کرکٹ کھیلتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ ثاقب کی ٹیم بھی انہی میں سے ایک تھی۔ اب کون جا کر بال لے کر آئے؟ آج تو قسمت ہی خراب ہے۔ دل ہی دل میں انا للہ پڑھتے ہوئے ثاقب نے آگے بڑھ کر زہرا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسے 100% یقین تھا کہ اس وقت وہ گھر میں اکیلی ہی تھی۔ اس کے ابا ابھی بھی جاب سے آئے نہیں تھے اور ماں کا انتقال ہوئے تو عرصہ گزر گیا تھا۔ ایک ملازمہ ہی تھی جو اس وقت تک اپنا کام کاج ختم کر کے چلی جاتی تھی۔ پڑوسی ہونے کے ناطے ثاقب ان کے گھر کی ساری روٹین جانتا تھا۔ بیل کی آواز بجی پر گیٹ کسی نے نہ کھولا۔ کاش کہ زہرا کے ابا آ جائیں۔ اس کے مقابلے میں تو وہ قدرے بہتر طبیعت کے ہیں۔ اسے تو بال واپس ملنے کے کوئی امکانات ہی نہیں۔ ابھی آدھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ کھٹاک سے گیٹ کھل گیا۔ سامنے ہی زہرا کھڑی تھی، غصے سے سرخ چہرہ لیے۔ اس کے لمبے گیلے بال تھے، شاید وہ ابھی واش روم سے نکلی تھی۔ کیا مصیبت آ گئی ہے جو سکون کا سانس نہیں لینے دیتے؟ کس لیے دروازہ بجا رہے ہو؟ میں نے آج کے دن کی خیرات فقیر کو دے دی ہے، تمہیں اب کس چیز کی امید ہے؟ اس کے دل جلانے والے جملے ثاقب کو اندر تک سلگا گئے، لیکن کیا کرتا؟ اس وقت مجبوری تھی، اس لیے پوری کوشش کر کے اس نے اپنے لہجے کو میٹھا بنایا۔ زہرا دیکھو یار، تمہارے گھر ہماری بال آ گئی ہے، دیکھو ہم تمہارے پڑوسی ہیں، پلیز آج بال واپس دے دو، آئندہ کبھی تمہارے گھر بال نہیں آئے گی۔ اور ویسے بھی شاٹ میں نے نہیں مارا تھا، وہ تو گدھا حسن، اسے کھیلنا ہی نہیں آتا یار، آئندہ میں اسے ٹیم میں کھلاؤں گا ہی نہیں، تم پلیز ہماری بال واپس کر دو، ہمارے پاس ایک ہی بال ہے۔ ثاقب منہ بناتے ہوئے اس کی منتیں کر رہا تھا، مگر وہ زہرا ہی کیا جو مان جائے۔ اچھا جی، بال واپس کر دوں؟ شکل دیکھیے اپنی، جی تو کرتا ہے تمہیں بیچ کر اس کھڑکی کے پیسے پورے کروں جو تمہاری بال کی وجہ سے ٹوٹی ہے۔ اب نکلو یہاں سے، اور آئندہ اب دوبارہ دروازہ مت بجانا، چاہے بال آئی ہو یا تمہاری بھینس کھل کر ہمارے گھر آ گئی ہو، یہاں سے تمہیں کچھ بھی واپس نہیں ملنے والا، بھاگو اب یہاں سے۔ اس سے پہلے کہ زہرا گیٹ بند کرتی، ثاقب تل ملا کر رہ گیا۔ اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بی بی، دینا ہے تو دو، نہیں تو میں انکل کو تمہاری شکایت لگا دوں گا کہ تم پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتی، ان کے ساتھ برا سلوک کرتی ہو بال واپس یا کروں فون انکل کو؟ ثاقب کی بات سن کر زہرا کے چہرے کے تاثرات ذرا ڈھیلے پڑ گئے۔ ابا کی سختی سے وہ واقف تھی، وہ اسے ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ نرم دلی سے پیش آنے کا کہا کرتے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، لے کر آ رہی ہوں،
ना चाहते हुए भी ज़हरा ने साकिब की बॉल उसे वापस कर दी। साकिब की खुशी तो ऐसी थी गोया उसे पूरा खजाना मिल गया हो। ये बॉल मिलने की खुशी नहीं थी, बल्कि ज़हरा के घर से बॉल मिली थी। उसने आज नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। वो तो जानता ही ना था कि अब्बा की धमकी इतना काम कर जाएगी। वाह साकिब, आज तो तूने इस चुड़ैल को लाजवाब कर दिया। आइंदा भी ऐसे ही करना है मेरे भाई, शाबाश। खुद को शाबाशी देता वो अपनी बॉल लेकर पलट गया। अभी उसका आधा मैच बाकी था। उसी शाम को जब वो छत पर अपने नोट्स बना रहा था, उसने बराबर वाली छत पर सरसरी सी एक नजर डाली। वहां वही खड़ी धुले हुए कपड़े तार से उतार रही थी। कितने बदरंगे कपड़े पहनती है। सुबह भी इसने यही सफेद रंग का ड्रेस पहना हुआ था, अभी भी वही पहना हुआ है। बेध्यानी में ही वो उसका जायजा ले गया। छत पर से अब्बा की कमीज खींचते हुए ज़हरा ने जैसे ही उनकी छत की तरफ देखा, सामने ही साकिब बैठा था। उसका हल्क तक कड़वा हो गया। जब देखो कहीं ना कहीं से आन टपकता है। अल्लाह ऐसे पड़ोसी किसी को ना दे जिनको देखकर ही मुंह का जायका खराब हो जाए। इतना पढ़कर क्या करोगे? होना तो तुमने वैसे ही फेल ही है। वैसे भी इस साल तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है। सुना है अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हारे अब्बा तुम्हें किराने की दुकान डाल देंगे। वैसे अच्छा है, तुम्हारी पर्सनैलिटी के साथ सूट भी वही करती है। मुस्कुराते हुए ज़हरा ने साकिब का दिल जलाया। वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, ये पूरा मोहल्ला ही जानता था। ज़हरा की बात ने तो गोया साकिब के ऊपर पेट्रोल ही डाल दिया। वो पहले ही अपनी पढ़ाई को लेकर काफी बातें सुन चुका था। हाँ, मैं तो हूं ही निकम्मा, लेकिन अपनी सुनाओ। बीए में 2 बार तो सप्ली ले चुकी हो, इस बार भी पास होती हो या नहीं कोई नहीं जानता। वैसे आपस की बात है, इंटर के इम्तिहान में कितने रुपए देकर पर्चे क्लियर करवाए थे? क्योंकि जितनी तुम ज़हीन हो, लगता तो नहीं है कि तुमने कोई किताब खोलकर पढ़ी होगी। ज़हरा तिलमिला कर रह गई, लेकिन इससे पहले कि उसे कोई जवाब देती, उसे नीचे से अब्बा की आवाज आई। वो उसे चाय बनाने के लिए आवाज दे रहे थे। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी। बड़ा आया फेलियर। नीचे अब्बा बड़ी देर से ज़हरा को आवाजें दे रहे थे। उन्हें उस टाइम चाय की बड़ी तलब होती थी। बीवी के इंतकाल के बाद वो अपनी सारी फरमाइशें ज़हरा ही से करते थे। वो भी घर के काम काज जी जान से करते थे। अब्बा के सारे काम काज वो अपने हाथों से करते, इसीलिए उन्हें आज तक कोई परेशानी ना हुई थी। ये काम काज की ज्यादती ही का असर था कि वो हर साल पर्चों में फेल हो जाती। अब भी पिछले 2 साल से फेल हो रही थी। अब के बाद तो अब्बा ने कह दिया था कि 1 साल और मजीद फेल हुई तो शादी कर दूंगा। ज़हरा धुले हुए कपड़े कमरे में रख कर खुद किचन में चले गए। यूं ही दिन गुजरते चले गए। ज़हरा ने अपने इम्तिहानात दे दिए। साकिब के भी यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात हो गए। उन दिनों वो इंजीनियरिंग की इंटर्नशिप कर रहा था। उसका रिजल्ट आ चुका था। खुशकिस्मती से उसने सेमेस्टर क्लियर कर लिया था, और वो भी बड़े अच्छे नंबरों से। मगर अम्मी की जुबानी उसे पता चला कि ज़हरा फिर से इस बार फेल हो गई। उसे थोड़ा सा अफसोस तो हुआ। बड़ा अच्छा हुआ, चुड़ैल सारा दिन तो लड़ाई में बिजी रहती थी। थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती तो पास हो जाती। उन्हीं दिनों ज़हरा के घर में कुछ अजनबी लोगों का आना जाना बढ़ गया। इतवार का रोज था। साकिब हस्बे मामूल अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। वो ज्यादा से ज्यादा इन दिनों को एंजॉय कर लेना चाहता था, क्योंकि वो जानता था इंटर्नशिप खत्म होते ही परमानेंट नौकरी लग जाएगी, और फिर उसके बाद इस खेल कूद के दिन कहाँ बचेंगे। तभी उसने देखा बड़ी सी गाड़ी में कुछ लोग ज़हरा के घर के सामने उतरे। कुछ औरतें थीं और साथ में मर्द भी। उन्हीं के बीच में एक हैंडसम सा लड़का भी था। उन लोगों के हाथ में मिठाई के बड़े बड़े टोकरे थे। ये लोग ज़हरा के घर के अंदर चले गए। साकिब को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी बेतवज्जोही टीम के दूसरे लड़कों ने भी महसूस कर ली। वो सही से खेल ही नहीं रहा था। इतने में अचानक एक लड़के ने शॉट लगाया और बॉल ज़हरा के घर जा पड़ी। सारे टीम मेंबर्स सर जोड़कर खड़े हो गए कि अब बॉल ज़हरा के घर से कौन लाएगा। साकिब आगे बढ़ा और कहने लगा,
हमेशा की तरह मैं ही ले आता हूँ। उसने ज़ाहरा के घर का गेट खटखटाया। थोड़ी ही देर के बाद गेट खुल गया। सामने ही ज़ाहरा खड़ी थी। ना जाने साकिब को ऐसा महसूस हुआ या वाकई ऐसा था। ज़ाहरा की आंखें सुर्ख हो रही थी, जैसे वो रोती रही थी। वो, तुम्हारे घर में हमारी बॉल आई है, दे दोगी? खिलाफे मामूल साकिब ने बेतवज्जोही से बॉल का तकाजा किया। ज़ाहरा ने एक गहरी नज़र उस पर डाली और चुपचाप पलट गई। उसने खामोशी से बॉल लाकर साकिब के हाथ में पकड़ा दी। साकिब ने बॉल ले ली, लेकिन पलटने की बजाय वहीं खड़ा रहा। ना जाने उसका दिल अजीब से अंदाज में क्यों धड़क रहा था। दोनों कुछ देर एक दूसरे को खामोशी से देखते रहे। अचानक अंदर से ज़ाहरा के अब्बा की आवाज आई, कहाँ रह गई बेटा? तुम्हारे ससुराल वाले रस्म करने के लिए तैयार हैं, जल्दी आओ। फिर ज़ाहरा ने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के उस तरफ साकिब खड़ा रह गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? इसकी शादी जहां मर्जी हो, मेरा दिल क्यों डूब रहा है? साकिब अपनी कैफियत से खुद भी अनजान था। उसने मैच अधूरा छोड़ा और घर चला गया। ज़ाहरा के ससुराल वाले ज़ाहरा को अंगूठी पहनाकर चले गए। वो खामोशी से अपने कमरे में लेटी हुई थी। अचानक उसे छत पर खटका सा सुनाई दिया। अरे यार, कहीं परिंदों का पिंजरा खुला तो नहीं रह गया? जो बिल्ली आ गई है, भगा कर आती हूं। ज़ाहरा लपक कर सीढ़ियां चढ़ती ऊपर पहुंचे, मगर वहां कोई बिल्ली नहीं थी। एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। बस पत्थर फेंकने वाला भी सामने ही खड़ा था, पड़ोसियों की छत पर। वो साकिब था। क्या ये पत्थर तुमने फेंका है? हाँ, मैंने फेंका है। ज़ाहरा के सवाल पर साकिब ने ढिठाई से जवाब दिया। शादी क्यों कर रही हो, वो भी उस घोंचों के साथ? देखने में ही निकम्मा लग रहा था। ज़ाहरा ने ठंडी सांस भरी। शादी इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं बीए में फिर फेल हो गई, और वो घोंचू नहीं है, सरकारी नौकरी है उसकी। अब्बा को बहुत पसंद है, इसलिए कर रही हूं। सरकारी नौकरी तो मेरी भी लगने वाली है, उससे तो ज्यादा ही तनख्वाह होगी मेरी। क्या तुम्हारे अब्बा मुझे भी पसंद कर लेंगे? अब्बा को छोड़ो, उन्हें तो मैं ही मना लूंगा। तुम अपनी बताओ, क्या तुम्हें मेरा साथ कबूल है? साकिब ने इस कदर अचानक ऐसी बात कर दी थी कि ज़ाहरा हक्का बक्का रह गई। वो मुंह खोले उसकी जानिब देख रही थी। रात के अंधेरे में ये लड़का उससे क्या बात कर रहा था? वही बात जो वो अरसे से उसके मुंह से सुनना चाहती थी। हमेशा बॉल मांगने के बहाने वो उसके घर आ जाता, और वो लड़ने के बहाने उतनी देर तक उसे देखती रहती। भला उसके चेहरे के अलावा भी दुनिया में वो कुछ देखना चाहती थी? मगर आज उसने जो बात की थी, उसने बहुत देर कर दी थी। ज़ाहरा की मंगनी हो चुकी थी और वो अपने बाप की दिल आज़ारी नहीं कर सकती थी। ज़ाहरा कुछ ना बोली, लेकिन उसकी आंखों से टपकते हुए आंसू ने साकिब को सब कुछ बता दिया। वो धीमे से मुस्कुरा दिया। फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अब जाकर सो जाओ, रात हो रही है। वो चुपके से सीढ़ियां उतर गया। जैसे आया था वैसे ही चला गया। मगर ज़ाहरा की नींदें हराम हो गईं। चंद ही दिन बाद ज़ाहरा के ससुराल वालों ने फोन करके रिश्ते से मुआवजत कर ली। उनके लड़के को कोई और लड़की पसंद आ गई थी। ज़ाहरा की जान में जान आई। ना जाने ये सब कुछ कैसे हुआ था। मगर उसी शाम को जब उसने साकिब को अपने घर वालों के हमरा ड्राइंग रूम में बैठे देखा, तो उसके दिल में दूर दूर तक खुशी बिखर गई। मनचाहे शख्स को हासिल करने की खुशी दुनिया की हर खुशी से बढ़कर होती है। उसने पहचान लिया था। वो पर्दे की ओट से छुपके साकिब को देख रही थी। जब उसने नजर उठाकर सीधा पर्दे की जानिब देखा, यूं लगता था जैसे वो दोनों एक दूसरे की बात बगैर कहे ही जान लेते हों। साकिब ने एक गहरी मुस्कुराहट ज़ाहरा की जानिब उछाली। उसने घबराकर पर्दा छोड़ दिया
وہ دونوں ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے تھے۔ زہرا کو یقین تھا ابا ثاقب کو کبھی انکار نہیں کریں گے۔ خوشیوں بھری زندگی ان کی منتظر تھے۔ دوستو، یہ تھی ثاقب اور زہرا کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں اور مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ میری کہانیاں کس ملک سے اور کس شہر سے سن رہے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر رہے۔